हाय, गुड इवनिंग। सो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसके बारे में बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 5 सितंबर 2022 को शाम को 6 बजे देर इज़ अ वन बिग discussion is going to happen, and that name is Unacademy One. So stay tuned and do join for this discussion. Okay. Now after this, आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का होने वाला है वो ये है कि इज बांग्लादेश इज गोइंग टू बी दी नेक्स्ट श्रीलंका। ओके। देखिए, अभी रिसेंटली ही न्यूज में आया था कि बांग्लादेश ऑल्सो अप्रोच्ड आईएमएफ फॉर अ लोन। और आप लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की, अगर आप बात करें श्रीलंका की, पाकिस्तान की, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो उस केस में ये होना कि बांग्लादेश इज ऑल्सो गोइंग टू IMF फॉर अ हेल्प, बिकॉज ऑल्सो मे बी देर बिंग फेसिंग दी प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। तो क्या वो भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर उनकी सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है? ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि इज बांग्लादेश इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट श्रीलंका। ओके। तो देखते रहिए वीडियो और जानिए कि क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं है, या फिर केवल और केवल ये अलग अलग लोगों की अलग अलग जिसे आप कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका है कि वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। ओके। सो लेट्स सी एंड डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके। नाउ अब देखिए, पॉइंट ये आता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर ऐसा नहीं है तब तो सब कुछ ठीक है ही है। समझ पा नहीं पा रहे हैं? चलिए आगे देखिए। अबाउट मी, आई एम प्रतीक गुप्ता। So I am teaching the civil service aspirants for the last 10 years, and my code is PG UPSC. So if you want to join my plus course, which is going to start from 8th of September at 7 a.m. in the morning, then you can simply join and you can use my code PG UPSC for getting 10% off there. Okay. Now, after this, as you know, why you need to join Unacademy, because you know this thing, it is the India's largest learning platform. Okay. Then after that, why you need to choose Unacademy, because you know that not know that thing that toppers choose Unacademy. So rank 3, rank 4, rank 5, and moreover, what all different facilities you've been getting here, that is in front of you on your screen. Okay. Then after that, you can simply choose the top educator as per your choice. So whatever educator you want to choose as per the liking of your course, your interest area, or you can say whatever area you think you are weak there, that you can simply choose there. Then after that, you can join us on the Telegram channel and moreover on the community channel of the Unacademy. Then after that, you know this thing that we have two types of courses currently now. One is plus courses and the second is iconic courses. So what is the basic difference between these two? In the iconic courses, you will get the one-to-one mentorship, and you will also get the mains question and answer practice. So the amount is in front of the screen, that for 36 months in case of UPSC GS subscription, that you need to pay around 2996 per month, and in case of your iconic courses, you need to pay 4741 for 36 months. That means for 3 years that you need to pay that much amount of money. Okay, and you can use my code for the purpose of getting 10% off there. Then after that, you have the combo subscription also. So if you also want to join for the your optional subject, then you can simply choose the plan as per your choice for 12 month, 18 month, 24 month, and 36 month. So it is completely up to you that whether you want to join the plus course and the iconic courses. Okay. Then after that, optional subscription, if you want to take separately, then the amount is in front of you. The price after 10% off, you just need to pay 1500 rupees per month for 36 months, and you can use my code there. Then after that, if you're facing any kind of financial difficulty, then simply you can go for 0% EMI. So you can simply call on the given number and the team will help you. Okay. And then after that, the batches are starting from 8th of September. So you have the bilingual batches, you have the English medium batches, and moreover, you have the Hindi medium batches also. Okay. That is what all the announcement we have for the upcoming days. Okay. And moreover, you know those things, there is a one thing, UPSC EduQuest is going on. So you just need to guess the name of the astronomical mission depicted here. So as you have the thing in front of you, so if yes, you are being able to find out the name of the whatever astronomical mission you have in front of you, then you can simply win up to 18,000 rupees. And that is what the procedure we have if you want to simply participate. So on 5th of September, you will be able to know that who is all going to win 18,000 rupees. Now after this, let's come to our topic.
that whether Bangladesh is going to be the next Sri Lanka. अब देखिए पॉइंट ये आता है कि why the people are being currently thinking that Sri Lanka is that Bangladesh is going to have the same problem as the Sri Lanka is currently facing. जैसे देखिए पहले पॉइंट में आपको दिखेगा कि बांग्लादेश recently sought a 4.5 billion US dollar loan from International Monetary Fund. So there is a one RST, that is your resilience, and the sustainability fund is being made by the International Monetary Fund, where they are being simply lending to those least developed country, or you can say the developing country who might face problem because of climate change, or you can say they are being facing problem because of the pandemic which is being going on. Okay, so under that they will be able to get, as you know that IMF is normally giving loan for the short-term purposes, but under this particular RST, you will be able to get loan, or the country will be able to get a loan for comparatively longer term, and that too they will be able to get at a concessional price. Okay, price means that they're going to get the loan at a lower rate of interest. So Bangladesh recently sought a $4.5 billion loan. So point ये है, जैसे ही न्यूज में ये आया कि बांग्लादेश ने इतने लोन की डिमांड की है, तो मान के चलिए लोग ये क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि क्या बांग्लादेश में भी वही प्रॉब्लम होने वाली है जो श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई है. अब देखिए दूसरे पॉइंट पे देखिए हम, तो लिखा है विद दिस कंसर्न अबाउट इट्स इकोनॉमिक कंडीशन वो रेस्ड एज इट बीइंग सीन इन अदर कंट्रीज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. क्योंकि आप जानते हैं श्रीलंका में भी प्रॉब्लम हुई है, पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम हो रही है. श्रीलंका इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ एन इकोनॉमिक मेस, एज यू नो दे आर बीइंग फेसिंग मैसिव इशू. और आप जानते हैं वहां के प्रेसिडेंट अपनी जान बचा के भागे, वहां के लोग प्रेसिडेंट हाउस में घुस गए और पता नहीं वहां पे उन्होंने क्या क्या किया. आप लोग सब जानते हैं, न्यूज में आता रहता है. Pakistan under a new government is addressing political and economic challenges that includes a mammoth debt. Floods are also creating a lot of issues. So this thing, they have a lot of debt on this. You must be aware about this कि न्यूज में बार बार आता था पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम इतने हो गए, डीजल के दाम इतने हो गए, खाने पीने की चीजों की शॉर्टेज है, पेट्रोल पंप्स के आगे लंबी लंबी लाइन लगी हुई है. तो बहुत सारे इशू पाकिस्तान में चल रहे हैं. उसके अलावा देखिए हम एक और नेबरिंग कंट्री यानी कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद बात करें तो नेपाल की यहाँ पे आप देखेंगे. So Nepal also banned import of vehicles and other luxury items due to depleting foreign reserves. क्योंकि आप जानते हैं कि if you want to simply import something and if a country's currency is not a hard currency, then you have to pay in the foreign currency. So in this case, as you know, अगर आपके पास foreign exchange reserves नहीं है, या फिर आप मान लीजिए कि अगर आपकी कंट्री से एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं, that means you're not able to earn the foreign currency, then how you will be able to pay for your imports? तो उस केस में एक तरीका तो यह है कि अगर आपको अपने इंपोर्ट्स को कंप्लीट करना है तो सिंपली आप एक काम कीजिए, आईएमएफ से लोन ले लीजिए. बट अगर मान लीजिए आपको लोन नहीं मिल पा रहा है या फिर किसी वजह से आप लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो सिंपल एक तरीका है कि आप उस चीजों को बैन कर दीजिए, नॉन असेंशियल इन नेचर है. अब देखिए व्हीकल्स और अदर लग्जरी आइटम के बिना तो लाइफ आपकी चल सकती है, बट आपका अगर हम बात करें कि फूड के बिना, उसके बिना काम नहीं चल सकता. तो उस केस में मान के चलिए वी नीड इट. That's why you can say they have provided कि हम लग्जरी आइटम्स को बैन करेंगे. ठीक है. एंड मोर ओवर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे श्रीलंका को चाइना ने अपने जाल में फंसा लिया, जिसे आप बोलते हैं डेट ट्रैप, क्या इसी तरीके से चाइना बांग्लादेश को भी अपने जाल में डेट ट्रैप में फंसा सकता है या नहीं फंसा सकता है? ये पर्टिकुलर पॉइंट देखिए यहां पे निकल के आता है. अब देखिए आगे अगर हम बात करें और पॉइंट्स की, तो यहां पे लिखा है कि India's extended assistance worth over 3.8 billion US dollar to Sri Lankan this year to help deal with the economic crisis. ठीक है. In the same manner, are we going to provide any kind of help, to the Bangladesh also? Now, as you can see, Bangladesh has now become the third country in South Asia to approach the IMF after Sri Lanka and Pakistan. यानी कि दो तो हमारे नेबर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पर क्या अब जब तीसरा भी पहुंच गया है तो क्या उसमें भी वही प्रॉब्लम होने वाली है? इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, इन टोटल 90 कंट्रीज हैव नॉक्ड द आईएमएफ्स डोर पोस्ट द पेंडेमिक फॉर लोन. एक बात अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर देता हूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है व्हेन ए कंट्री इज बीइंग फेसिंग बीओपी इशू. बीओपी इज व्हाट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज. यानी कि अगर आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी आ कम रही है, and moreover it is going more out from a country, then in this case you are being left with lesser amount of foreign currency, and that means you have lesser amount of foreign exchange reserves with you. Point समझ रहे हैं? Now moreover if you see
Bangladesh comes in the backdrop of high import prices for gas and food, as you know, because of the Russia and Ukraine war. तो कहने का मतलब ये है कि पहले ही प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा पेंडेमिक के बाद जिस तरह से रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ने से एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज के प्राइस बढ़ गए हैं, उसके अलावा गैस के प्राइस बढ़ गए। गैस के प्राइस क्यों बढ़ गए? बिकॉज रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गैस एंड मोर ओवर द क्रूड ऑयल एट ए ग्लोबल लेवल. So in a way, that is also a matter of concern for Bangladesh in the upcoming days. In fact, it is currently going on. Bangladesh is also worried about the depleting export as the global economy slows down. आप जानते हैं जैसे कि करंटली बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी मार्केट है यूरोपियन कंट्री, जहां पे वो अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, अगर मान के चलिए यूरोप में ही ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है और वो उनके टेक्सटाइल को इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं या फिर उनके इंपोर्ट्स कम हो गए, तो कहीं ना कहीं that is also going to create a problem for Bangladesh. So that's why if you see the next point, the country is more concerned about Europe's economic struggle, as the latter is a major consumer of its booming textile industry. यानी कि अगर बायर के पास ही पैसे नहीं है तो वो कहां से पे करेगा, मान के चलिए. So that's why you can see that textile industry is also being suffering. Moreover, points यहाँ खत्म नहीं हुए. Europe slowdown will mean Bangladesh foreign currency earning potential as a garment export house that it has become over the year will be hit. Definitely it is basically being hit. Moreover, ऐसा नहीं कि वहीं की हिट हुई है, इंडिया की भी हिट हुई है. Moreover, falling remittances post COVID-19 is another matter of concern. तो मान के चलिए जिस तरह से कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है फॉरेन कंट्रीज में, उनके पास जॉब नहीं है, तो अगर पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, इफ दे नॉट अर्निंग एनी काइंड ऑफ थिंग, देन हाउ दे विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस टू देयर नेबर्स इन केस ऑफ आवर कंट्री. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इन दिस पॉइंट ये निकल के आता है कि डज दिस मीन बांग्लादेश इज ऑन इट्स वे टू अ स्लो डाउन और नॉट? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के देखिए, अलग अलग कंट्रीज के लोग जो है वो इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो बाकी देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में हुई है. अब देखिए, सारी चीजों के ऊपर बात करने के बाद ऐसा नहीं है कि हम एकदम कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि हाँ भैया यहाँ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होने वाली है. ऐसा नहीं है. किसी भी कंट्री की बारे में अगर हमें यह जानना है कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, देखिए एक सिंपल सा पॉइंट होता है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एग्जाम देने गए हैं और एग्जाम में पेपर बहुत टफ आया है, बट इफ ए वेरी वेल प्रिपेयर्ड, देन स्टिल यू कैन से यू विल बी एबल टू परफॉर्म गुड. यानी कि अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की तो मान के चलिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे. दैट मीन्स यू विल बी एबल टू सेल थ्रू. बट मान के चलिए अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करी और एग्जाम में पेपर टफ आ गया, तो कहीं ना कहीं पॉइंट ये है कि आप फेल हो सकते हैं. दैट यू माइट गेट फेल इन द एग्जाम इफ यू नॉट वेल प्रिपेयर्ड. मोर ओवर, अगर आपको ऑलरेडी ये पॉइंट पता है कि देखिए एग्जाम इस साल टफ आने वाला है, देखिए एक चीज ये है कि आपने अच्छे से तैयारी करी, एग्जाम टफ आ गया, आप एवरेज नंबर लेके पास हो गए. और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे ये निकल के आती है, अगर आपको पता है कि इस साल एग्जाम वाकई में टफ आने वाला है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सोर्सेज, देन यू नीड टू प्रिपेयर इवन मोर हार्डर. दैट मीन्स आपको एडवांस में इस बात के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भैया पेपर टफ आने वाला है, सिचुएशन टफ है, तो मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मान के चलिए कि अगर हम बात करें कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, क्या वो टफ सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार है या नहीं है, तो हमें उसके कुछ फंडामेंटल्स की बात यहां पे करनी पड़ेगी. तो देखिए हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की यहां पे. इफ यू टॉक अबाउट द की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ बांग्लादेश, then you will be able to see that the real GDP growth, that means only the growth in quantity, not in terms of prices, it is very well, like 7.9, 8.2, 3.5. Even you can say in the time of pandemic, like in 2020-21, they're still able to grow at 5% in the country. As you know, in case of corona pandemic year, we were facing a negative GDP growth rate, but in case of Bangladesh, they're still having a positive growth. Then this year, like the year just passed by 6.6, and now this year expecting to be grow by 7.1%. That means Bangladesh is having a good potential to grow at a very good rate. डिफ्लेटर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, कंट्रोलेबल है. सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करेंगे एनुअल एवरेज की, तो देखिए हमारी कंट्री से तो कहीं कम है. इट इज बीइंग काइंड ऑफ वेरी कंसिस्टेंट, 5.8, 5.5, 5.6, 5.6 एंड सो ऑन. दैट मींस इट इज नॉट आउट ऑफ कंट्रोल.
अगर आप बात करेंगे सीपीआई इन्फ्लेशन एंड ऑफ पीरियड में, तो अगेन यहाँ पे आप देखेंगे ये भी काफी कंट्रोल, एंड मोर ओवर इफ यू टॉक अबाउट द नॉन food CPI inflation, that means about the industrial goods and the other, then again it is being kind of very much under control, except this particular year it is being high. Otherwise every time if we talk about, it is less than 6% in case of Bangladesh. That means fundamentals के मामले में बांग्लादेश is comparatively better placed, I would say. मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए इन फंडामेंटल्स को देख के तो आंसर ये निकलता है कि नहीं, बांग्लादेश में प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें बांग्लादेश के डेट टू जीडीपी रेशो की, तो इट इज जस्ट 36%, एंड मोर ओवर आउट ऑफ दिस यू कैन से अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, दैट मींस एक्सटर्नल डेट इज इवन मोर लेस इन केस ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, मोर ओवर जितना भी डेट बांग्लादेश का एक्सटर्नल है उनमें से इट इज क्लोज टू 14% ऑफ जीडीपी, मान के चलिए उसमें से सारा का सारा जो उनका लोन है कंसेशनल इन नेचर है, दैट मींस दे आर बीइंग एबल टू गेट दोज लोन्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मींस द इंटरेस्ट बर्डन इज नॉट हायर इन केस ऑफ बांग्लादेश। पॉइंट समझ रहे हैं? उसके आगे अगर आप बात करेंगे तो ग्रोथ भी जीडीपी की काफी अच्छी है। अगर आप इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज की भी बात करेंगे, then they've been doing pretty well. It is around 7%. Okay. Moreover, Bangladesh is merely being cautious and approaching to the IMF as a precautionary step to ensure that there is no instability in future. क्योंकि देखिए अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, बांग्लादेश के पास ऑलरेडी 40 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो उसके 5 to 7 मंथ्स की इनपुट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यानी कि 5 से 7 महीने तक कुछ भी अगर वो नहीं करते, देन स्टिल दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी बाय विच दे कैन फीड देयर पीपल विदाउट देयर एनीथिंग, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि यहां पे अगर उनके पास ऑलरेडी इतना रिजर्व है, तो देखिए नॉर्मली हम एक बात कहते हैं कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बी काइंड ऑफ मोर ऑफ प्रोएक्टिव व्हेन प्रॉब्लम माइट अपीयर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। अब जैसे श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका वाज मोर ऑफ रिएक्टिव इन नेचर, व्हेन दे फेस्ड प्रॉब्लम देन दे अप्रोच IMF, बट इन केस ऑफ बांग्लादेश इवन दे नो दे आर बीइंग बेटर प्लेस, दे आर बीइंग काइंड ऑफ इन अ गुड सिचुएशन एंड इन अ बेटर एंड स्टेबल कंडीशन, दे आर बीइंग मोर प्रोएक्टिव इन देयर वर्क, एंड दे आर बीइंग लाइक कि भैया अगर प्रॉब्लम अपीयर होती है ज्यादा ही, थोड़ी बहुत तो वो झेल जाएंगे, बिकॉज दे हैव गुड अमाउंट ऑफ रिजर्व विद देम एंड मोर ऑफ द इंडस्ट्री इज आल्सो डूइंग वेल। बट इन केस मान के चलिए अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था ना कि एग्जाम में अगर आपको पता है कि पेपर टफ आने वाला है, तो बेटर क्या है कि पहले से ही आप अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। एक्स्ट्रा प्रिपेयर यू नीड टू डू, प्रिपरेशन यू नीड टू डू, अदरवाइज अगर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो या तो एवरेज से पास होंगे या फिर आप फेल हो सकते हैं। तो उसी तरीके से बांग्लादेश अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इन एडवांस लोन लेके कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती तो in advance we are having good amount of money by which we can simply face or you can say tackle this problem. मोreover अगर आप आगे बात करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं बांग्लादेश में तो प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आने वाली है, बट पॉइंट ये मान के चलिए कि इंडियन बांग्लादेश इज बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट हैविंग ए वेरी गुड रिलेशनशिप, क्योंकि देखिए कई बार ये पॉइंट ये आता है कि चाइना बांग्लादेश को अप्रोच कर रहा है बिकॉज देयर आर सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव बीन गोइंग ऑन इन बांग्लादेश विद द हेल्प ऑफ चाइना। बट मान के चलिए चाइना हमेशा एक बात बोल के चलता है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो बांग्लादेश कहता है कि देखिए मुझे इंडिया से और चाइना से दोनों से ही रिलेशन बना के रखने हैं, साथ चलना है, मिलके चलना है, बट मुझे दोनों से एक डिस्टेंस भी बना के रखना है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर बांग्लादेश चाइना के ज्यादा करीब आएगा तो इंडिया रूठ जाएगा, और अगर वो इंडिया के ज्यादा पास आएगा तो चाइना रूठ जाएगा। तो इसलिए मान के चलिए देयर इज अ वन थिंग कॉल्ड इक्वी डिस्टेंस रिलेशनशिप विच इज बीइंग मेंटेन्ड बाय बांग्लादेश विद बोथ इंडिया एंड चाइना। अब जैसे अभी आप जानते हैं कि 4 सितंबर को जो जो बांग्लादेश की चीफ है, शी इज गोइंग टू विजिट इंडिया एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट वी आर गोइंग टू टॉक टू हर अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें कि ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज के बारे में बात की जाएगी। ओके, मोर ओवर
इंडिया ऑल्सो कोऑपरेटेड विद बांग्लादेश क्लोजली ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। जैसे आप जानते हैं कि हमने उनको ट्रेन इंडियन रेल एक भेजी थी जिसमें जिसका नाम था ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ओके, सो वी प्रोवाइडेड देम गुड अमाउंट ऑफ वैक्सीन ऑल्सो when they were facing problem. Instead you can say they being facing problem, we are being helping them. Moreover अगर आप बात करें आगे, जिस तरह हमारे इंडिया में डिजिटल इंडिया चलता है, ऑन द सेम वे यू कैन से डिजिटल बांग्लादेश प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ इंडिया। मोरओवर इंडिया इज ऑल्सो हेल्पिंग बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग 12 IT पार्क्स इन केस ऑफ देयर कंट्री। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे वो IT पार्क्स भी बना रहे हैं। मोरओवर मैत्री पावर प्रोजेक्ट इन खुलना and India Bangladesh friendship pipeline project is also being commissioned this year। ठीक है, तो मान के चलिए टाइज हमारी उनसे काफी गहरी हैं। तो मान के चलिए जिस तरह से हमने श्रीलंका को हेल्प किया, अगर मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम कोई आती भी है इन फ्यूचर, तो इंडिया बांग्लादेश की भी हेल्प जरूर करेगा, बिकॉज दे डू नॉट वांट, इंडिया डू नॉट वांट दैट द बांग्लादेश विल आल्सो बी इन द डेट ट्रैप ऑफ होम ऑफ द डेट ट्रैप ऑफ चाइना। उसके लिए अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग बात देखेंगे तो इंडिया एंड चाइना, India and Russia is also being working together in Bangladesh for a civil nuclear cooperation project by building a Rupur nuclear power plant। And सबसे अच्छी बात, जिस तरह UPI आप जानते हैं कितना सक्सेसफुल है, आज के ही न्यूज़पेपर में डेटा था कि हमारे इंडिया में करीब करीब मान के चलिए जितनी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, अराउंड 64-65 करोड़ ट्रांजेक्शंस विच हैपन ड्यूरिंग विद दिस हेल्प ऑफ दिस UPI, and the amount is really high। We are also going to offer the same kind of thing, the UPI solution to the Bangladesh to simply take care the informal sector there in their country also। okay, तो पॉइंट मान के चलिए कि जिस तरह से सिचुएशन है, तो बांग्लादेश में तो फिलहाल देखिए ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमें ये कहें कि, या फिर अगर आपको ये कहता है कि वहां पे ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, देन दैट इज नॉट द पॉइंट। ओके, तो देखिए ये आज के लेक्चर में मुझे आपको बताना था, एंड द कंक्लूजन ये है कि ऐसा नहीं होने वाला है। अब उसके बाद आप जानते हैं UPSC CSC कॉम्बैट इज गोइंग ऑन, सो 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है जिसके अंदर इफ यू बेसिकली रैंक बिटवीन 1 to 50 यू विल बी एबल टू गेट 50% ऑफ, देन 51 to 250 30% ऑफ, एंड देन आफ्टर दैट फॉर द नेक्स्ट 250 पीपल यू विल गेट 25% ऑफ। ओके, then after that the mains test series is going to be start from September 11, so if you want to enroll you can simply enroll there। तो आज के लेक्चर में मुझे आपको यही बताना था, तो स्टे ट्यून्ड। 8th of September से मान के चलिए, फ्रॉम 8th of September आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई योर द प्लस कोर्स, सो यू कैन सिंपली ज्वाइन देयर। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।